Hi everyone, hope you all are doing well. Today, our first guest, Mr. Rupesh Bhargav, a smart Indian with an engineering degree, a UPSC background, and entrepreneurial journey to begin with. Till 16 standards, he is a usual guy. After that, an unconventional path has been taken up. Anything more you want to add, Mr. Rupesh? Yeah, pretty good introduction by the way. Yeah, I am Rupesh Barkar. I have completed my engineering as every Indian nowadays. I have done it in electrical engineering from Walchand College of Engineering, Sangli. After that, I had secured a job through campus placements. Our college is good in that manner that we get placed. So I was placed in a construction company, a reputed one. The job was good, pretty good, but that was not something for me. So I decided to change my career option, and while exploring what other things I can do, I felt that UPSC is something that I must give a try because I thought that I have some skills that are pretty good and that can be used after I become a district magistrate or any other service in the central government for as such. And that's why I started preparing for UPSC. I did some pretty good homework before deciding to switch my career path. I prepared for UPSC for 3 years and could not clear the exam even in a single time. And then I again decided to switch my career path, and now I am working with a startup. It's called as Hexanovate, and I work as a sales executive over here. Like you mentioned that you will be a good district magistrate. How you come to that conclusion? I am good at communicating with people, and in the construction job, it was pretty. I was in MEP department, which stands for Mechanical, Electrical, and Plumbing. In that, the work was pretty technical, and this is something you can expect from an engineering job, right? The engineering jobs are meant to be technical, but like every other kid in India, this was not a conscious decision of mine to pursue engineering. I got the job. I could see that the extracurricular activities that I used to do in my college days, because my communications were good, because I was good at convincing people. My next question is that don't you think that UPSC is a propaganda by a colonial mindset, parental aspirations and coaching industry सब मिलकर चाहते हैं तुम ऐसा एक सपना देखो डोंट यू एग्री Yeah, yeah. If you are choosing UPSC because you want the glamour, you want the status, you want the elite feeling No, that no, 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 no. you are into a position where People are focusing on the things what you needed. See, this is the very easy way to say that you are focusing on glamour or this. But nowadays it's internal propaganda that you should do UPSC because a lot of work has to be done. You can do so many things. But I think so. Even if you are not a DM or if you are not a something, you can do it on your own also. definitely you can do it on your own as well. Many people are doing it. See, many NGOs are running who are doing good for the society. You don't need to be a DM, district magistrate, for doing all those things. Yeah, I completely agree with you. But if you have some authority in your hand, and see, my motivation for doing UPSC was that I wanted to implement the government schemes better. And for implementing the government skills better, you need to have some authority, some power in your hand. Okay, you need to become a part of the system to implement the policies better. Okay, it's not that the policies are not good. The government is taking much efforts. There are various committees, there are various experts sitting together to make the policies. The policies are best on paper, but what lacks in India is that the policies are not better implemented. Feasible होती है implementation. Yeah. So, who are the people who are implementing these policies? Those are the district magistrates and the entire system below the district magistrate, right? So, if I can be the part of the system, maybe I can. I thought that I could contribute better, and that was my internal motivation for going into UPSC. If someone is Right? saying that they wanted to make a change in the society and they could not do it in any other way than being a district magistrate, then I don't feel that is a very correct statement to make. I'm not talking about you. I'm talking about the general scenario. Okay. Basically, it is basic. I tell you, the many students of 19 and 20 years, they start preparing for UPSC. But because what actually happens is that UPSC preparation needs 2 to 3 years. Basically, you also need it is very big to say that it is taken half a year, 6 months to 3 months. It's not a crash course. It takes 2 to 3 years. If you by chance clear prelims in that 2 to 3 years, your 3 years, next 3 years are also gone because you will be trapped in a cycle until unless you clear the exam. See, It's just I have seen so many people starting from 20 and and figure it out till 27 because true, true. 23, 24 they will give the first attempt, 25th is the second attempt.
and they will miss one attempt because they think that I will prepare good enough for 2 years, then I will give you my third attempt. Yeah. This is very general scenario I'm talking about. And the thing is that and within this, so many mafias and so many fake coaching institutes are rising up right now. Have you seen that the tricks to solve the prelims? What are the tricks? And second thing, my material, my coaching material, my this material, everybody is carrying a material and material and material. If you go into Rajendra Nagar or Mukherjee Nagar, you will see. You don't have to go to Rajendra Nagar. You just go into the aspirant room. I just don't say go to the market. I say go to the aspirant room. You will see the lot of material. Yeah. What you say that what do you think in general scenario? What should the best approach to go to the UPSC? And let me clear my approach. What I want to say. Firstly, you should have if you are an engineering graduate or if you have any bachelor's degree, right now getting the easiest source of income in the starting, and it's a easy and take an easy job, which you think that it is SSC CCL is there or maybe anything, and prepare side by side for the UPSC. Give 2 to 3 hours regular basis. Once you are basically 3 to 4 years, you are done with the optional, you are done with your, then try to give this exam. If you are able to clear prelims 1 or 2 times, then only you should consider yourself. Otherwise, this is just an exam. 700 people are going to clear it. Take it as a God's gift. That's what it is to be. Mentality should be there. Don't waste so many years. That is what I'm on. Because after that, you are just explaining that why I have wasted so many years, what I am getting it. मतलब वो failure के तो 6 साल तो वो failure के हो गए और 3 साल उसको explain करने के हो गए. 9 साल तो तुम्हारी जिंदगी यही चलेगा. Yeah. So my thought on this is that कि एक जॉब पहले सिक्योर कर लेना चाहिए और फिर उसके साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर सब कुछ छोड़ के यूपीएससी को ही प्लान ए और प्लान जेड सब कुछ यूपीएससी को मान के ही प्रिपरेशन करना चाहिए. ये काफी सब्जेक्टिव डिसीजन हो जाता है. जैसे अगर मेरी बात करूं मैं तो मैंने मेरे जॉब के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चालू कर दी थी. आई विल जस्ट डिस्क्राइब अबाउट माई जॉब प्रोफाइल. तो मेरा जॉब ऐसा था कि मेरा जॉब सुबह 8:30 बजे शुरू होता था और रात के 8:30 बजे खत्म होता था. So 12 hours is not something that is expected in Indian corporate, right? Indian corporate work is for 8 hours. But as I was deployed on a construction site, I was a site engineer. On site, what happens is the laborers come at 8:30 and they leave the site at 8:30. Their work ends around 6:30 or something. But 2 hours are there for the procedural work, like what work you have done, their presentee, their hazari, etc., their payments, and that all takes 2 hours. So they leave the site at 8:30. And as a site engineer, we are responsible for the safety of the labor working on the site, right? Safety of the workers working on the site. So unless and until the workers, all the workers leave the site, we were not allowed to leave the site. So that is how my job used to become from morning 8:30 to evening 8:30, right? So after going home at 8:30 in the evening, there was not much time to prepare for this exam, right? Hardly I used to get 2 to 3 hours a day max to prepare for this exam. And if I prepare with the speed of 2 to 3 hours a day, I would have taken 3 years only to prepare for the prelims, okay, only to give my first attempt, correct? Because other students are studying for 8 to 9 hours on an average per day, but I am studying only 2 to 3 hours a day. So with this speed, it would have taken me to cover the entire syllabus and be prepared for the exam a 3 years period of time, which is a very huge time. And I didn't want to stay in that job. I used to feel like I am stuck in this job. There was not much interest in that job that I had. So I decided to resign from that job and dedicate entire year for the preparation, then give the first attempt. If I am able to clear the exam in my first attempt, well and good. अगर मैं नहीं भी clear करता हूँ, so I had decided I will prepare for 1 more year, give the second attempt, and then if I clear the exam, the best thing that can happen to an aspirant. If not, then I will look for other career opportunities in my life. Now what happened is, during the first attempt, I realized that I am very good in answer writing. Okay, mains answer writing, the descriptive answer writing. Okay, the coaching institutes I had joined is a reputed coaching institute. It is a national level. It was online coaching institute. I did not come to Delhi for preparation. So in that institute, the teachers or my mentors who used to check my answer sheets of mains answers, they used to give very good comments. They used to say that if you clear the prelims and write the mains exam, you will be the one securing a top rank, like within what was your option? first 200 rank
My option was sociology. Sure. Yeah. So due to these comments, I felt very motivated, and I thought that the prelims is the only hurdle that I need to clear. Once I am through prelims, I am going to qualify this exam. So this same thing repeated in the second attempt as well. My descriptive answer writing was very good. My essays were very good. My ethical question papers answers were also very good. GS4. So due to these reasons, I thought that I can still clear this exam with flying colors. It is for the viewers that UPSC is a three-stage exam. The first stage, the prelim stage, it's a multiple choice questions and it's a qualifying stage. It consists of two parts. One part is GS and one is Quant. Quant 33% of the marks, and with the GS the merit list is being prepared, and after clearing prelims you went to the main stage. It consists of nine papers. Four is GS1, which is majorly of static part, history, world history. GS2 is basically governance, polity. GS3 is science, economics, and GS4 is ethics. Then is essay paper, two optional paper depending on, and one paper is of language and your choices, and one paper is of language of English and another one of Hindi, and these language, and after mains the selected candidates goes for the interview, and the final merit list is being prepared by taking interview and mains exams both. The result is out of the prelims. Those who have qualified the prelims, the result is out within 20 days. After the result is out, within 3 months there is mains exam, in 3 months exactly, and after that there will be interview. 2 to 3 months. Yeah. So this entire process takes complete 1 year. Till the result is out, it takes 1 year. So You give 2 attempts. I did 3 attempts. 3 attempts. So how you transform your UPSC journey, writing good exam answers to this entrepreneurial setup? Not an easy journey. But How you make up your mind, basically? Yeah. तो ऐसा था ना कि लाइफ में कभी कुछ बड़ा इतना बड़े लेवल का कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन जो कुछ भी किया है छोटा छोटा अचीव किया है, लेकिन हमेशा अचीव किया है. इससे पहले ऐसा फेलियर एज सच कुछ नहीं था. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 10th आई मैनेज टू सिक्योर अ गवर्नमेंट कॉलेज. आई वांटेड टू डू डिप्लोमा, तो डिप्लोमा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर करने का ड्रीम देखा था 10th में, और परसेंटेज अच्छे आ गए. JET वाला? नो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. नहीं, वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है ना, जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, जो +1 +2 नहीं करते. नहीं, महाराष्ट्र स्टेट के लिए वो अप्लाई नहीं होता. यहाँ पे 10th के रिजल्ट पे ही आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा. हाउ मच योर 10th स्टैंडर्ड मार्क्स? 90%. 90%. I passed my standard 10th in 2012. एंड इंजीनियरिंग में यू गिव एग्जाम्स और वो डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाता है. Yeah, in engineering, after once you complete your diploma, the process is this, that you get direct admission to second year. You get direct admission to second year of your engineering. ये हमारे यहाँ भी होता है, बट हमारे यहाँ JET एग्जाम होता है. Yeah, after 12th you have to give the JEE exam. In diploma you don't have to give any entrance test as such. Only the diploma marks are considered for your qualification for graduation. So और जैसे आजकल वैसे इंजीनियरिंग की एडमिशन चल रही हैं या वैसे चल रही हैं, एनी मैसेज टू द न्यू एंट्रेंस Okay. So एज योर एक्सपीरियंस वन? कॉलेज लाइफ मैंने तो करिकुलर से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है मेरी कॉलेज लाइफ में. ज्यादा से करिकुलर करी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर करी थी? व्हाट यू थिंक? मेरे हिसाब से दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए. ये काफी स्टैंडर्ड आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक्सपेक्टेड है. एक बैलेंस मेंटेन करो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा ध्यान देना चाहिए rather than करिकुलर एक्टिविटीज. अपने बचपन के सारे शौकों को पूरा कर लेना चाहिए. डेफिनेटली यू शुड डू देम. ऐसा होता है ना कि आप कॉलेज में आने के बाद एक लिबरेटेड फील करते हो, क्योंकि इतने दिन आप पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर, ओवरव्यू के अंदर रहे होते हो. फिर टाइम भी तो लिबरेशन दे देता है. या टाइम भी तो लिबरेशन दे देता है. कॉलेज में एम्पल टाइम लगता है. घर से दूर आए होते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको एकदम ऐसा लिबरेटेड फीलिंग आता है, एकदम इंडिपेंडेंस आपको मिल जाता है. तो या यू शुड एक्सप्लोर सम न्यू थिंग्स, और वो भी करना चाहिए, लेकिन या यू शुड फोकस ऑन करिकुलर एज वेल, बट यू कैन मैनेज टू एक्सप्लोर सम थिंग्स. ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई आई वांट टू ऐड, मतलब कॉलेज में अगर जो भी बच्चे जा रहे हैं, इवन द पीपल हु आर गेटिंग टू कॉलेज, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते. दैट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ गट एंड फीलिंग एंड गो फुल्ली फॉर एनी प्रोफेशन. Be a scientist, be a data scientist, be a man company, be an entrepreneur, being a UPSC man. You can do anything. You have 3 to 4 years and go like that. You are a successful entrepreneur, successful person.
जब जब मैं डिप्लोमा में था तो देयर आई यूज टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर। मैं एक्चुअली स्कूल के टाइम से एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा ज़्यादा था। आई एम काइंड ऑफ स्पीकर पर्सन। मैं एंकरिंग अच्छी कर लेता हूँ, एक्सटेम्पोर स्पीच, एलिगेशन स्पीच कर लेता हूँ। और ड्रामा एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की थी, लेकिन आई वॉज नेचुरली गुड एट इट। सो व्हेन आई वेंट टू माई कॉलेज डेज, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, दैट इज़ वेयर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम। तो वालचंद कॉलेज में जाने के बाद ना वहाँ पे आर्ट सर्कल नाम का एक क्लब था। और आर्ट सर्कल नाम के क्लब के अंदर क्या होता था ना कि उसके अंदर एक डांस टीम होती थी, एक ड्रामा टीम होती थी, एक आर्टिस्ट लोगों की टीम होती थी। डांस टीम ऑब्वियसली दे वर गुड इन डांस, ड्रामा टीम यूज टू पार्टिसिपेट इन ड्रामा इवेंट्स। आर्टिस्ट टीम के अंदर होता था कि पेंटर्स हो गए, राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, ये सब आर्टिस्ट टीम का पार्ट थे। और एक टीम थी म्यूजिक टीम जिसके अंदर बैंड, सिंगिंग, ये सब चलता था। तो they had arranged an event in our college where there was drama competition, dance competitions, and all these art related competitions. I participated in a drama competitions just as a fun activity, and then I became a winner over there in that competition. And so the club members, like the president of that club, approached me and said that you should become a member of this club. Okay, nice. That आपको डर नहीं लगता when you feel when you are on the stage? नो नो नो, एक्चुअली स्टेज पे जाने से पहले ना थोड़ी देर होता था, लेकिन मेरा ऐसा है कि एक बार मैं स्टेज पे चढ़ जाता हूँ और 2 लाइंस बोल जाता हूँ, उसके बाद में मेरा फियर कंप्लीटली चला जाता है। उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, क्योंकि सी द ऑडियंस की ऑडियंस पकड़ा है। रिस्पॉन्स टू माय वॉइस इज गुड। इट हैज बीन ऑलवेज गुड। Okay. स्टेज पे चढ़ने से पहले डर होता है ऑब्वियसली, मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बार अब मैं स्टेज पे चढ़ जाता हूँ और 2 लाइंस बोल जाता हूँ, उसके बाद में मुझे कोई डर नहीं लगता। देन आई एम as good as speaking alone in a room. Okay, okay. और what about your family expectation and pressures? हाँ, मेरे फैमिली को ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। या इट वाज गुड कि किसी रिपब्लिक डे के इवेंट में वो कॉलेज में आ गए, या फिर कॉलेज में तो नहीं आते थे स्कूल के टाइम पे तो जब रिपब्लिक डे के इवेंट में या फिर इंडिपेंडेंस डे के इवेंट में फैमिली जब आती थी, तब पेरेंट्स के सेक्शन में बैठ के उन्हें थोड़ा प्राउड फीलिंग आता था कि अपना बच्चा स्पीच दे रहा है। लेकिन एज अ करियर ऑप्शन उन्होंने कभी ये नहीं चाहा था कि मैं इन सब Forever. चीज़ों में जाऊँ। इवन माई फादर यूज टू से माई परसेंटेज आर नॉट वेरी गुड इन स्कूल डेज, so my father used to say that you should focus more on studies rather than Tip- Typical pursuing 1980s, these extra 1970s वाले पेरेंट्स। अभी अभी बदल रहा है, अभी बदल रहा है। आजकल के पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फोकस करते देखा है मैंने। इवन हमारे घर पे जो अभी नए नए बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनको एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए काफ़ी मोटिवेट करते हैं। अब तो एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर हो गया यार। एक्स्ट्रा करिकुलर ही करिकुलर। हाँ, और एक थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस बताओ कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे छोड़ी और ये जर्नी कैसे स्टार्ट की। ये बड़ी एक्साइटिंग है बिकॉज क्या सीन होता है कि आपने 3 साल दिए, किसी ने 4 दिए, किसी ने 5 दिए, वो इसी फिगर आउट में रहता है। और छोड़ना जर्नी को ना, मतलब आप खुद बताओ कि जर्नी आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाती है एंड यू हैव टू टीयर इट ऑफ दिस। आई थिंक सो एवरी एक्सपीरियंस, टीरियस एक्सपीरियंस हैज टू। 3 साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यूपीएससी आपके लाइफ का पार्ट बन जाती है। आप जब सुबह बॉडी का हिस्सा होती है। आप जब सुबह उठते हो तो आपके दिमाग में यही थॉट्स होते हैं कि आज कौन सा पार्ट सिलेबस का कवर करना है, आज क्या प्रिपेयर करना है, यही थॉट है। रात को सोने से पहले यही थॉट है कि आज इतना करना था यार, इतना नहीं हो पाया, चलो कल और अच्छे से करते हैं, और ज़्यादा टाइम पढ़ लेते हैं, कल आज का कंपेंसेट भी करना है। तो यही थॉट्स चलते रहते हैं एक दिमाग में। तो 3 साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आपका जॉब छोड़ के आप आपके सारे फ्रेंड्स कमा रहे होते हैं उस टाइम पे, वो अपना अपना फाइनेंशियली ग्रो कर रहे होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में शादियां हो रही होती हाई पोस्ट पर चले जाते हैं, आप ये सब देख रहे होते हो साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह साइड लाइन होके। तो काफ़ी काफ़ी मुश्किल सफ़र है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब जब आप देखते हो तो डिमोटिवेटिंग भी फील होता है at times। तो 3 साल है। कोरोना में तो बहुत हेल्पलेस लगता था हाँ हाँ कि हम कुछ कर नहीं सकते और हमें आइडियाज इतने आते थे, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, सारा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते। जब दूसरे दूसरे सब एंजॉय, और जो जो जॉब कर रहे होते हैं दोस्त आपके, वो सब एंजॉय भी तो कर रहे होते हैं, वीकेंड पे ट्रिप्स पे जाते हैं, वीकेंड पे पार्टीज करते हैं, और आप वो सब एंड वी डोंट हैव मनी। या वी डोंट हैव ये तो आस्क फॉर मनी टू आवर पेरेंट्स। हाँ, आस्किंग और मनी टू योर पेरेंट्स एट वो दिस एज, वो जिल्लत भरी जिंदगी बड़ी औखी होती है। सही सही कह रहे हो भाई, जिंदगी तो जिल्लत भरी हो ही जाती है। अगर आप 3 साल से ज्यादा अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो श्योरली आपकी एज 26 के आगे बढ़ चुकी है, आप कमा नहीं सिर्फ रहे 3 हो चीज, इसमें 2 से 3 चीजें हैं। एक तो आप पैसे नहीं कमा रहे और आपको ज्ञान बहुत आई जा रहा है। सोसाइटी सही है, बहुत कुछ चीजें समझ में आ रही है, लेकिन वो
वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। ये सब करने के बाद ना आपका एक्सपीरियंस जो था, जो आपने जैसे मेरे बारे में कहूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर एक जॉब की 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास जॉब का, लेकिन उसके बाद 3 साल का कंप्लीट गैप था। इस गैप के बीच में मुझे कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था। जो मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज थी वो अब रस्ट हो चुकी है, वो अब मुझे शार्पन करने के लिए और कुछ टाइम उसमें डालना पड़ेगा। तो अभी मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज ऑलमोस्ट जीरो है, विदाउट रिविजन और विदाउट ब्रशिंग ऑफ दैट नॉलेज अगेन इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, इट्स नेग्लिजिबल। और यूपीएससी के जो आपने पढ़ाई की है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर कोई जॉब नहीं मिलती मार्केट में, रादर बीइंग ए टीचर। टीचर के अलावा आपको दूसरी कोई जॉब नहीं मिलती इस नॉलेज के बेसिस पे, करेक्ट। तो अगर आपको टीचर नहीं बनना है तो आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि इसके आगे क्या, आप क्या करें। अब अगर प्रिपरेशन स्टॉप भी करें, अगर आप इस स्टेज पे आके यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टॉप करें तो आगे क्या करें। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम बच जाते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करें। तो फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा होता है माइंड में कहीं कि अपने पास कैपिटल नहीं है, अपने पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिजनेस में कुछ पता ही नहीं है, अपने अपने पूरे पुरखों ने कभी बिजनेस नहीं किया है, किया ही नहीं है। हाँ, यू विल बी द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन योर फैमिली। ये सब थॉट्स आते हैं। ये सब थॉट्स मुझे इस स्टेज पे आने के बाद, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ कुछ महीनों के लिए जीने के बाद, मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि ये सब थॉट्स अप्रोप्रिएट है। इनके अलावा भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन तब लगता था, जब मैं यूपीएससी की फेज में था, तब लगता था कि यार एंटरप्रेन्योर तो अपने बस की है नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, एक टीचर बन जाए किसी यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट में। लेकिन टीचर बनने के लिए भी आपके पास, अगर आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किए, तो वो भी आपके प्रिपरेशन पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप सीरियस कैंडिडेट कभी थे, ठीक है। तो आपकी, और उसके अलावा आपकी टीचिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, सही बात है, लेकिन आप पढ़ा पा रहे हो कि नहीं, वो भी तो एक स्किल है बहुत बड़ी। तो वो स्किल आपके पास होनी चाहिए। अगर वो है तो आप टीचर बन सकते हो, नहीं तो फिर आपको कोई और स्किल्स एक्वायर करनी होगी। उसके लिए मेहनत कुछ टाइम देना पड़ेगा, तो और एक्वायर करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद कहीं उस स्किल के बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। तो ये थॉट्स थे मेरे माइंड में जब मैं एंड कर रहा था अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन एंड करने की सोच रहा था। एक्चुअली ऐसा था कि मैं सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही एंड करने वाला था, लेकिन मुझे एक होप था कि सेकंड अटेम्प्ट में आपको कुछ मिस्टेक्स हुई है, उन मिस्टेक्स को सुधारते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में और जोरों से पढ़ाई। आप बड़ी जल्दी निकल गए भाई, आप बड़ी जल्दी निकल गए। ये होप के चक्कर में लोग कितने टाइम लगा देते हैं। सही है। एक दो चीज है, सिर्फ होप नहीं है, दूसरी चीज ये भी है कि अगर यूपीएससी नहीं तो क्या भाई, वो डर भी लगने ये जो निकलने नहीं देती। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया बात आपने की एक डर कि वो डर कि भाई 3 साल बढ़ता जाता है, फिर टाइम बढ़ता जाता है। ये डर कि भाई अब करना है तो यूपीएससी ही करना है, क्योंकि इसके लिए 3 साल दे दिए ऑलरेडी। अब मार्केट में अपनी वैल्यू क्या है, यूपीएससी का नॉलेज, अगर यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करते तो वैल्यू नहीं बचती। तो ये भी डर मन में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं होता है। तो इन चीज़ों की वजह से ना बच्चे जल्दी लीव आउट नहीं कर पाते। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन की जो साइकिल है, वो 6 साल अपने सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट होने तक प्रिपेयर करते ही रहते हैं। बट एक चीज है, यूपीएससी तुम्हें धुरंधर बना देती है। चाहे हारो चाहे जीतो। अगर लाइफ में अभी इसके आगे कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो शायद मैं इतना नहीं डरूंगा जितना ऑलरेडी डर चुका हूँ। अभी तो ऐसा है कि भाई कुछ भी आने दो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कॉन्फिडेंस तो बहुत। बिकॉज यूपीएससी वाला बंदा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुम्हें बिल्कुल ही अपने पीक टाइम पे बिल्कुल जीरो कर दे। एंड यूपीएससी स्टूडेंट सीज एवरी डे दिस थिंग। आप चाहे आईटी कंपनी में 20,000 कमा रहे हो, बट आपको जीरो फील नहीं होने देती आईटी कंपनी या फिर कोई भी बंदा। यूपीएससी वाले को हर एक बंदा जीरो फील कराता है, इस चक्कर में वो भी मिलता ही नहीं जिससे। सही है। तो फिर जब प्रिपरेशन एंड करके जब मेरा ये डिसीजन लेने की बारी आई कि अब आगे क्या करना चाहिए, तब मेरे पास यही ऑप्शंस थे जो मैंने आपको अभी बताया। एंटरप्रेन्योरशिप करे, या तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर ले, उसके बाद में भी इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल ले, या फिर कोई नई स्किल एक्वायर करके कोई जॉब के लिए अप्लाई करे। तो मेरा तो ये डिसीजन था कि टीचिंग तो मैं लास्ट ऑप्शन रखना चाहता था, अगर कुछ और नहीं होता है तो टीचिंग कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन था। एंटरप्रेन्योरशिप मेरा कभी ऑप्शन नहीं था। एक स्किल एक्वायर करके जॉब ढूंढना मेरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, या फिर फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन मान लो उसको। उसके बाद में सेकंड बेस्ट ऑप्शन था टीचर बनना, क्योंकि या आई कैन स्पीक वेल। मैं जब कभी मेरे दोस्तों को पढ़ाता था तो उनको कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होती थी, तो मुझे यही लगता था कि टीचर ही बन जाना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा हुआ ना कि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ मेरे कॉलेज के एलुमनाइज वगैरह, तो
मैंने उनसे थोड़ा बात करना चालू किया कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आई कैन एक्सप्लोर। और फिर उसमें ऐसा पता चला कि यार जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स के अंदर ना जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनको पे करने की कैपेसिटी नहीं होती इनिशियल स्टेजेस में। जो मार्केट के एक्सपीरियंस लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको मार्केट से उठाना है तो उसको आपको एटलीस्ट 50 to 60,000 पर मंथ देना पड़ेगा अगर वो एक्सपीरियंस बंदा है। लेकिन एज ए स्टार्टअप, अगर वो स्टार्टअप बूटस्ट्रैप है, सारा पैसा खुद से लगा रहा है, कोई फंड्स रेज नहीं किए उस स्टार्टअप ने, तो उस केस में उस स्टार्टअप को इतना एक्सपीरियंस बंदा हायर करने के लिए इतने पैसे नहीं होते उनके पास। दमड़ी नहीं उस होती। केस में वो फ्रेशर्स को हायर करना पसंद करते हैं और फ्रेशर्स को ट्रेन करते हैं कम सैलरी देके कि आप सीख लो यहाँ पे आने के बाद रोल, जॉब प्रोफाइल, कुछ देर काम भी कर लो साथ साथ, आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, फिर आप मार्केट रेडी भी हो जाओगे तो बाहर भी आपको जॉब मिल सकती है। सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ। द स्टार्टअप गेन्स अ एम्प्लॉय एट लो कॉस्ट, द एम्प्लॉय गेन्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्केट। ओके, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। सो एक स्टार्टअप के अंदर इंक्लूड होना मेरा अगला गोल बन चुका था। फिर आई थॉट कि कौन से स्टार्टअप को अप्रोच करें, तो उस हिसाब से मैंने कुछ एक्सप्लोर किया। तो मेरे फ्रेंड्स का एक स्टार्टअप था, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स, दे वर माय जूनियर्स। आई मेट देम इन द आर्ट सर्कल क्लब, एज आई सेड टू यू बिफोर। जो आर्ट सर्कल क्लब था उसके अंदर मेरे जूनियर्स थे जो ड्रामा टीम का पार्ट थे, जब मैं उनका ड्रामा हेड था। तो वो जूनियर्स ने एक स्टार्टअप खोल दिया था अपने कॉलेज डेज में। वो जब थर्ड ईयर में थे, फोर्थ ईयर में थे, तब उन्होंने एक स्टार्टअप खोला था जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता था। टेक्निकल सर्विसेज में ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे। वो सारे कंप्यूटर साइंस और आईटी बैकग्राउंड के थे मेरे जूनियर्स। तो उन्होंने ये स्टार्टअप खोला था। फिर विद टाइम उन्होंने ये रियलाइज किया था, जब मैं यूपीएससी की 3 साल की प्रिपरेशन कर रहा था, तब ये मेरे जूनियर्स वो स्टार्टअप को ग्रो कर रहे थे। तो वो स्टार्टअप को उन्होंने एज ए टेक्निकल सर्विसेज स्टार्ट किया था। लेकिन फिर जाके आगे आके उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने 2 प्रोडक्ट्स बनाए अपने खुद के। दे वर SaaS प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट्स, मतलब उनके अंदर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी और एक ऐप था। उस ऐप को वो दूसरों को बेच सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, आप आपकी सर्विसेज इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड कीजिए। तो उनके पास 2 प्रोडक्ट थे। अब वो 2 स्टैंडर्ड हो गया ना। या तो उन 2 कास्टिंग प्रोडक्ट को करके बेचने के लिए ये मेरे ग्रुप ऑफ जूनियर्स का जो स्टार्टअप है, हेक्सानोवेट नाम है इसका। हेक्सानोवेट मींस हेक्सा 6, नोवेट स्टैंड्स फॉर इनोवेट, 6 people into innovation. Yeah. So नाइस है। that is the name of the startup, Hexanovate. Yeah. We get that a lot, that your name of the startup is nice. So Hexanovate पहले टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था, लेकिन उन्होंने 2 प्रोडक्ट डेवलप किए खुद के। स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया उन्होंने। प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्हें एक मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत थी। लेकिन उस मार्केटिंग एजेंसी को पे करने के पैसे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट करते हैं, उसके लिए मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, तो सीख लेते हैं। सो दे स्टार्टेड लर्निंग मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल दिस, ओके, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग और ब्रांडिंग, UI UX, ठीक है, ये सब जो चीज़ें आती है मार्केटिंग के साइड में, तो ये सब उनको खुद करनी थी अपने प्रोडक्ट के लिए। सो दे स्लोली स्टार्टेड लर्निंग वन बाय वन दिस थिंग्स एंड दे लर्नड इट एंड दे डिड वेरी गुड इन मार्केटिंग। ओके, slowly it happened that they gained expertise in marketing itself. Now along with technical services, they started another vertical in this under Hexanovate. That vertical was digital marketing. Now at this current stage, the technical services aspect is somewhere diminished in front of the digital marketing aspect. Okay, every business nowadays needs digital marketing. There is not a single business today which does not require digital marketing. बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म हो चुकी है। बेसिकली टीवी वाली मार्केटिंग, हु इज गोइंग टू सी अ टीवी नाउ? द कम्युनिटी बेसिकली, आई आल्सो डू अ वेरी गुड ऑन मार्केटिंग। इट इज अ कम्युनिटी मार्केटिंग विद अ कम्युनिटी एंड विद द इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग। एंड इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, इफ 3 combine, you are blessed. Yeah, so digital marketing ही आज कल का नया सोर्स है। ठीक है, आज तो वो इनिशियल स्टेज में, कल को जाके ये और डीप होने वाला है। इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाली, जैसे Web3 हो जाएगा या फिर AI Metaverse ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर ट्रूथ एज वेल। इट इज गोइंग टू ग्रो वास्टली। ओके, सो डिजिटल तुमने एक ऑप्शन क्यों नहीं चूज किया? क्या जैसे तुमने ऑप्शन बताया दैट वर्किंग इन अ स्टार्टअप और टीचिंग, आपने एक होता है पोस्ट ग्रेड करने वाला कोर्स, वो क्यों नहीं चूज किया? या फिर आगे है ऑप्शन वो?
एक्चुअली मैं अभी एजुकेशन को एक लिमिट लगाना चाहता था कि आई डेंट वांट अ फॉर्मल डिग्री, ओके ओके, मास्टर्स नहीं कर वैसे लूँ ये या भी एक ऑप्शन होता है कि एमबीए में करने रहता है। या मास्टर्स कर लूँ या फिर एमबीए कर लूँ, तो ये सारे ऑप्शंस मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट उन सब चीज़ों में नहीं था, कि मुझे अभी आगे सीखना नहीं था। अभी मुझे मार्केट रेडी बन के कोई जॉब हासिल करनी है एक्सपीरियंस जिससे करना कि मैं, हाँ, जिससे कि मैं कुछ अर्निंग कर पाऊँ। हाँ हाँ है। एक चीज और, व्हाई यू कंपेयर योरसेल्फ विद अडानी? आपका लिंक्डइन पोस्ट था हाँ हाँ। अडानी के साथ, और उसमें मेजर डिफरेंस तो बहुत बड़ा आप में और उसमें। इट वाज लाइक बिकॉज कि जैसे जैसे आपने सोचा कि द थिंग दैट कि मतलब यू वर नॉट रेडी टू स्टार्ट योर ओन प्रोडक्ट और योर ओन स्टार्टअप, बट ही इज तो ऑलवेज ऑन द टॉप की वो तो अपना प्रोडक्ट फटाफट स्टार्ट कर देता है। तो उसमें ये वाली तो बड़ा बहुत फर्क है आपने और उसमें। right. So I will give a little clarification here. I thought the post conveyed a wrong message. uh, ओके, नहीं जस्ट ऐसी पूछा। yeah, so it was like कि I am not like Adani, I am nothing like Adani, but I can become the यू next कंपेयर Adani. योरसेल्फ। I can become the next Adani, in the sense ओके I ओके can become the next big entrepreneur of India. The word Adani meant ओके, I can become the next big entrepreneur of India. Why? व्हाट्स योर प्लान इज देयर? My plan is to be into entrepreneurship now. My plan is to launch few products, understand and launch few products and be into entrepreneurship. कुछ आइडिया? So, idea about products that I want या to do. Okay, कहाँ, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा, okay. Yeah, I will come to that. क्या पर्सपेक्टिव है? Yeah. So ऐसा था ना कि एंटरप्रेन्योरशिप तो अब के स्टेज पे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द बिग थिंग एंड आई शुड डू दैट। ओके, तो आप क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसके लिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बिजनेस आपको अगर खोलना है तो एक अप्रोच मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सोल्यूशन ढूंढने की ट्राई करो। अगर आप उस प्रॉब्लम को एकदम सही से सॉल्व कर पा रहे हो, देन इट इज अ विन विन। People are getting the solution to the problem and you are making money out of it. So making money should not be the goal of the business. Solving the problem of the society should be the goal of the business. अगर आप ये अचीव कर पा रहे हो तो your business is never going to shut down. Okay, your business is going to run until and unless it is solving the problem in the society. So ये थॉट के साथ मैं अभी हूँ। तो अभी मुझे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो राइट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, एक बिजनेस रन कैसे होता है, एक स्टार्टअप जो ऑलरेडी सेट किया है मेरे दोस्तों ने, वो स्टार्टअप कैसे रन हो रहा है, सेल्स कैसे करते हैं ये भी मैं सीख रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है ये मुझे नहीं पता था। मुझे बस पता था कि इंस्टाग्राम होता है, एफबी होता है, जिसके ऊपर अकाउंट्स होते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। उसका मार्केटिंग के लिए यूज कैसे होता था, आई वॉज कम्प्लीटली नॉट अबाउट इट। बट यू आर वेरी प्रेटी गुड इन, या your one post has around 70,000 likes. That is really huge for the new one. that is something I don't know how it became viral. It was my first good post actually. In that I had explained my UPSC journey and it became viral. I got something around 19,000 reactions to it, more than 10 lakh impressions. So that was huge. Yeah. हाँ, because it was very मतलब दिल से निकली हुई बात थी और सही था मतलब। That was my fourth or fifth post on LinkedIn and that became viral. So it was huge. So एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ये बता रहा था कि अभी तो ये सब सीख रहा हूँ, आगे चल के कुछ अभी एक अगर आइडिया आपको बताना हो तो एक आइडिया मेरे मन में है कि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था तब पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की जब स्टडी करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर आप अगर माउंटेन्स के नाम रटोगे या फिर लेक्स के नाम रटोगे, रिवर्स के नाम रटोगे, तो मे भी आप उनका सब कुछ इतने अच्छे से याद नहीं रख सकते जितना कि आप उसको मैप में प्लॉट करके या ड्रॉ करके हैंड से याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड। Instead of learning this, that Ganga starts from Uttarakhand, just take a blank map of India, outline map of India, draw a dot in Uttarakhand, and start drawing the river, how it flows from Uttarakhand to Uttar Pradesh. Okay, उससे सारा कुछ हो जाएगा। yeah. उससे बेसिकली आपको ट्रिब्यूटरीज भी आ जाएंगी, जंगल भी आ जाएंगे, Yeah. From सिटीज भी आ जाएंगी, we are to West Bengal, from West Bengal to Bangladesh, and from Bangladesh to कॉटेज, आपको इंडस्ट्री भी आ जाएगी। तो ये सब याद रखने के वजह बस एक मैप लो, उसके ऊपर ड्रॉ करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस अप्रोच से मैंने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी को प्रिपेरेशन।
ये कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यही सजेस्ट करती है. इट वाज नॉट समथिंग माय इन्वेंशन और समथिंग लाइक दैट. नो, आई हैव नॉट डिस्कवर्ड दिस. You like that? You like that? Yeah, everybody guides you, keep that approach, but mostly students have the resistance to every time take a pencil, take a map and draw this thing. Instead of they start mugging it up. Okay, but I didn't do it at any point of time. मेरे को मैप लेके उसके ऊपर ड्रॉ करना ही सबसे ज्यादा फिजिबल लगता था और मेरा उससे याद भी काफी अच्छा, रिटेन भी काफी अच्छा हो रहा था, तो मैं वही किया. अब इसमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी. हर बार जब आपको रिवाइज करना है तो आपको एक मैप लेना है और उसके ऊपर ड्रॉ करना है. एक बार अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो मैप आपको फेंक देना है. ठीक है, ऐसे आपको कम से कम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स करना है, तब जाके आप इंडिया की सारी रिवर्स, जो कि हंड्रेड्स में राइट नाउ टेल यू अबाउट 100 रिवर्स ऑफ इंडिया. Even Ganga has so many tributaries. Ganga river system, Indus river system, Brahmaputra river system are huge, very huge. So उनके सारे ट्रिब्यूटरीज का, डिस्ट्रीब्यूटरीज का नाम याद रखना है, इज अ बिग डील. तो अगर आपको ये सब याद रखना है मैप ड्रॉ करके भी, तो आपको मैप फ्रिक्वेंटली ड्रॉ करते रहना है. तो मेरा ये होता था ना कि मैप की इतनी बड़ी मुझे करना क्या चाहिए इसके बाद, हो गया था मैप्स का एक बंडल तैयार हो गया था पूरा, जिसके ऊपर मैंने ड्रॉ करे हुए मैप्स. So I saw कि it's a big trouble for aspirants. They have to purchase those maps. They have to either purchase the ready-made maps or they have to get xerox the outline maps of India and then draw the things. Okay. तो मैंने ये सर्च करने का ट्राई किया कि एक ऐसा ऐप है क्या ऐप स्टोर पे जो आपके ज्योग्राफी के मैप्स को इतने आसानी से आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो या फिर प्लॉट कर सकते हो. ऐसा कोई ऐप अवेलेबल है क्या? तो विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन रिवर्स एंड ऑल, यू कैन गेट सम मैप्स कि यूएसए की मेजर रिवर्स, यूरोप की मेजर रिवर्स, एशिया की मेजर रिवर्स, ऐसे ऐप्स तो है. लेकिन ऐसा कोई इंडिया स्पेसिफिक या फिर महाराष्ट्र स्पेसिफिक ऐप नहीं है जिसके अंदर आप सारी इंडिया की रिवर्स प्लॉट कर सकते हो, इंडिया के माउंटेन्स प्लॉट कर सकते हो, इंडिया के लेक्स प्लॉट कर सकते हो. और एक एस्पिरेंट के एंगल से, अगर है भी तो इंफॉर्मेशनल एंगल से है, जहाँ पे आप जाओ, मैप खोलो और सब देखो, पढ़ो. लेकिन ऐसा कोई भी ऐप नहीं था जिसके अंदर आप वो प्लॉट कर सको एक स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे आप वो सब खुद ड्रॉ कर सको. ये सब चीज़ें ऐसा कोई ऐप मार्केट ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है. So the product idea here is कि develop such app. Okay. वैसे इस पे आपने बड़ा अच्छा बोला, मतलब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा. जितनी भी हमारी एजुकेशन गेम है ना, वो सारी की सारी मतलब बेसिकली बुकिश गेम है. इस अगर उसको गेमिंग गेम में बना दिया जाए ना, तो इट इज अ ह्यूज. जैसे आप मैप्स की बात कर रहे हो, मैं बेसिकली जैसे वो गेम आती है नहीं है कि यहाँ पे वो आपको बंदा दिख रहा है ठहरता हुआ, तो आप उसके ऊपर आग लगाओगे, खिड़की का करोगे या वो करोगे. द सेम गोज विद द कंट्री. आप मैप बनाओ, वहां पे देखो इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, आप ये देखो जी जंगल कहाँ होने चाहिए, आप देखो पथरीला रास्ता क्या है. कंसीडर इट ओनली गंगा की. यू विल एबल टू. और जब आप पड़ाव पार करते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों है, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस क्यों है, यहाँ पे लोगों को क्या पसंद है. मतलब आप इसको लंबी गेम में सोचोगे तो मतलब इवन द थिंग इज दैट मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो हमें टीचर्स ये कहते थे अगर 75% आपने काम रसोई में सीख लिया तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर ली. बिकॉज वी आर प्रोसेस इंजीनियर. व्हेन आई एम वर्किंग ऑन विच स्टार्टअप विच इज ऑलरेडी, मतलब हमने काम ही किचन से किया. हाँ, बिकॉज बेसिकली द थिंग्स वी हैव लर्नड इज एनफ, बट द थिंग इज वी हैव टू अप्लाई. इट्स नथिंग वी हैव अप्लाइड. इवन आप यूपीएससी में बात कर रहे थे, लोग पढ़ते जाते हैं. हाथ से कभी काम किया? कितने लोग आंसर राइटिंग करते हैं डेली बेसिस? आपको ही बताइए. बहुत रेजिस्टेंस होता है इनिशियली, लेकिन अगर आपको एग्जाम में सक्सेस करना है तो आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस रोज करना है. कितने लोग प्रीलिम्स का एक पेपर हर रोज सॉल्व करते होंगे? नहीं, बहुत कम. एक पेपर क्या 10 एमसीक्यू भी अगर रोज सॉल्व करते हैं ना, तो इवन मैं इनिशियल स्टेज में पहले 7-8 महीने तो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया था, टू बी वेरी. बिकॉज कोई भी मटेरियल इस चीज को हो ही नहीं करता. मतलब इन द सेंस नोबडी इज गिविंग यू दैट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन. चाहे रिप्यूटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में है भाई, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में भी कितने सिलेक्शंस हैं, ये तो कभी उनको भी पूछ के देखो. उनके पास तो आंसर्स हैं कि हमारे 10 निकल गए जी, बाकी नहीं निकले. भाई 2 लाख तेरे पास स्टूडेंट है, तो 10 निकाल रहा है. मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि दिस ऑल इवन, और ये यूपीएससी वालों को बातें बहुत आती हैं इस सेक्टर में. दे आर मतलब दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज अ वेरी वो माइंड वाले लोग जैसे. हाँ, और दे ट्रैप दिस पीपल इनटू दिस एजेंडा. मैनी पीपल आर डूइंग दैट. और ये बहुत धोखे वाली जिंदगी है. मेरी मतलब मैं ये नहीं कह रहा यूपीएससी इज डिफरेंट.
बट हाउ द यूपीएससी गेम इज प्रोपेगेंडेड दैट इज डिफरेंट. जैसे मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि कोई कोचिंग सेंटर खोलने के लिए हम 25 लाख रुपए सब्सिडी देंगे. मैं एक इंस्टीट्यूट हूँ, मैं आपको कहता हूँ आप मुझे 10 लाख दो, आपको 35 लाख का मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया. 25 लाख की गवर्नमेंट भी मैं ले लूंगा, 10 लाख भी मैं आपसे ले लूंगा. दिस इज द व्हाट इज मैनिपुलेशन इज लाइक. Exactly. And for us as a normal people from tier 2, tier 1, tier 3 cities, it's very easy to get trapped. एक तो ना तो दोस्त होते हैं ज्यादा, नहीं होती, that's very. और दूसरी बात, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती अपने शहरों में काम करने. You are shifted to Bangalore, you have lot of ideas, but right now nothing. Do you want to add something on it? Uh, I would like to finish the answer to my previous question first. कि कौन सा प्रोडक्ट है आपके दिमाग में, तो सो एक उस वो दैट विल कवर दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन एज वेल, कि आपने जो कहा ना उसके ऊपर भी कुछ कवर कर ले रहा हूँ. सो इट वाज लाइक कि एक तो ये था जो ऐप मैं बिल्ड करना चाहता था ड्यूरिंग माई यूपीएससी डेज, कि ऐसा अगर कोई ऐप हो तो बेस्ट है. नाउ आई हैव द स्टार्टअप विच आई हैव, उसके अंदर एक टीम है जो ऐप डेवलपमेंट करती है. सो आई हैव द रिसोर्सेस राइट नाउ, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ द बिजनेस फर्स्ट. वो बेसिक्स ये है कि आप मार्केट सर्वे करो. मैं एक एक्सपीरियंट था जिसको ऐसे लगता है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस को अगर लग रहा होगा तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए मार्केट में, नहीं तो नहीं आना चाहिए. मे बी दिस वॉज द प्रॉब्लम फॉर मी, मे बी दिस इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर ओवरऑल पब्लिक. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इज दिस. Don't go by your gut feeling. Yeah, having a gut feeling is good. Always follow your gut feeling, but along with that, you should also follow some basics first. अगर मार्केट सर्वे करके आपको पता चलता है कि ये ऐप एक्चुअली इसकी नीड है मार्केट में, तो ही आना चाहिए. अगर नीड नहीं लग रही है अभी, तो मे बी फ्यूचर स्टेज के लिए आपको इसे रखना चाहिए कि जब इसकी नीड फील हो तब आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करो. ठीक है, तो ये समझाने वाले इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है अपने इंडिया में कि That is what बेसिक्स I'm. That is what I'm. मेरा focus, because Learn Legit is basically live beyond exam. मेरा basically what the podcast is, that we don't have a people to talk about. आप जैसे कॉलेज में होते, वॉल्टन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, आप उस कॉलेज के बारे में बता सकते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन ये है तो आप ये कॉलेज जा सकते हैं. कोई भी कोर्स हो, अब जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन एमबीए की स्टार्ट हो गई, तो मुझे ये बताओ कि आपको अपग्रेड चुनना चाहिए या फिर आपको IIM इंदौर जाना चाहिए. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हैं आपके पास. सेम विद द कोचिंग इंस्टीट्यूट. कितने लोग मेंस लिखते हैं, वो 3000 लोगों के एक्सपीरियंस तो पूछ लो, वो बेस्ट एक्सपीरियंस होगा या फिर बाकी ये कोचिंग सेंटर का एक्सपीरियंस बेस्ट होगा? आप ही बताओ. आई एम सेइंग 3000 पीपल हु हैव क्लियर प्रीलिम्स एंड अपियरिंग फॉर मेंस, उनका एक्सपीरियंस अगर शेयर हो बच्चों के साथ, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ दीज मटेरियल्स और स्पेशल ट्रिक्स. मतलब basically this podcast is basically that we are craving the things for the people who do mistakes like the people have already did. correct. And second thing is that it's very difficult to shift your next game plan, but but you have to shift it if you want, if you feel it. Yeah. You have to take that hard decision, and you have to take that decision at right time. You will have to figure out कि कितने अटेम्प्ट आपके लिए बहुत अटेम्प्ट है. मे बी किसी के लिए एक अटेम्प्ट ही बहुत हो सकता है, मे बी किसी के लिए 2 अटेम्प्ट बहुत अटेम्प्ट है. मेरे लिए 3 अटेम्प्ट बहुत अटेम्प्ट. किसी को ऐसा लग सकता है कि यार 3 अटेम्प्ट तो दे दिए, चलो ठीक है, लेकिन एक अटेम्प्ट का उसके पास बैंडविड्थ है, वो 1 साल और अनएम्प्लॉयड रहना पसंद कर सकता है, चूज कर सकता है. मैं वैसा नहीं चूज किया क्योंकि मेरे लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं था. इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. मैं ये नहीं डिफाइन करना चाहता कि 2 अटेम्प्ट्स और बहुत अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स और टू मच अटेम्प्ट्स, ये मैंने कहना चाहता. लेकिन ये आप खुद डिसाइड करना चाहिए, एक एस्पिरेंट को खुद अपने लिए डिसाइड करना चाहिए कि यार अपने लिए कितने अटेम्प्ट्स देना बहुत अटेम्प्ट्स है. उसके कितने अटेम्प्ट के बाद अपने को ये समझ जाना चाहिए कि इज दिस एग्जाम मेड फॉर मी. ओके, यू आर गुड एट सम पार्ट ऑफ द एग्जाम, मे बी यू आर वेरी गुड इन इंटरव्यू, बट व्हाट इज द यूज इफ यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स फर्स्ट. ओके, so you will have to recognize this. Even now I feel that if I study, maybe I will be able to qualify the exam. I still have that confidence. But ये फील हमेशा रहेगी. Yeah, I still have that confidence. It's not about having the confidence or not having the confidence. I still feel that my mains answer writing game is very good. If I somehow clear the prelims, I can qualify for the mains. I can then write the mains, score good in it. I can give a good interview, and then I can become a district magistrate even at this point of time. But then again, I will have to realize that if I am going for this, I will again I will have to study for 1 year more, and if I don't clear the exam, then what? So initially, when I left my job, I had decided to give 2 attempts. I extended the bandwidth by 1 more year. I gave that attempt wholeheartedly. I did everything in my hands to give the best attempt.
I did give the attempt. It was very good. I had hopes of clearing the prelims, but I didn't. So unfortunately, I didn't clear the prelims. And then I decided that this was the last attempt that I am going to give, and I will switch my career path again. And See, I plan on we have a one we have being an we have one starting we have one so slogan over here. Our motto is that life is a battle. You win or lose, but you always prepare for another battle. and be open to things. Don't close yourself. Don't shut down yourself. Like, I don't have interest in this, or no, I'm never an entrepreneur. I used to think that I am not an entrepreneur material, or I used to think that I can never be an entrepreneur. But be open to things. If opportunity comes to your door, be open to it. This is what I feel. Nice talking to Rupesh. I think it's the time to wrap up and be very good to meeting you next time. Real things should, जो आम जनता है correct. उनके सामने ये सब नगीनों को निकाल दो. they should realize that even after preparing for 3 years, 4 years, still they can do great things in life. So you are playing a great part in conveying this message to them. That is what I wanted to say. Yeah. Thank you. So keep on doing it. You are doing Bye bye. delivering a great message over here to the society. Actually, every UPSC aspirant has this feeling कि यार 3 साल के अंदर जो गैप है या फिर 6 साल प्रिपरेशन के बाद जो गैप आया है, उसका कॉन्फिडेंस ना रॉक बॉटम पे गया हुआ होता है. His confidence has already hit the rock bottom. कि am I even worthy? Okay, after Of living. for 6 years, I could not clear this examination. Am I even worthy? Okay, am I even? Do I have a slightest chance of succeeding in any future endeavor? Their confidence is really at rock bottom. So by this thing, if you are bringing in people who have stopped their preparation and are doing great despite failing in this exam, if you are bringing such people instead of bringing some success stories, those who have cleared the exam, it's great. Those aspirants who could not clear the exam, I'm not promoting anything. I just want a real thing. true, yeah, real